Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you on behalf of AMA and the PR committee. Uh, Today is a special day, I think, uh, and we have a young crowd also amongst us, so that makes it special. Today we are here to meet the magician himself, someone whose personal vision is to learn, to share, and to smile. All of 40 and a gadget freak, he has lived his love throughout his career with the belief that sharing his knowledge and unleashing attitudes and polishing skills. He also loves traveling, especially unplanned trips, meeting new people, counseling, coaching, and having fun of adventure at every step of life. His impressive list of educational qualifications is long and includes him being a bachelor in commerce, a clinical hypnotherapist, a certified personal counselor, a diploma in yoga, a forensic graphologist and therapist. He's also certified by Dale Carnegie, uh, Tony Buzan, the merchants from UK, and he is a world pranic healer. He has touched more than 45,000 lives, trained more than 1,500 outbound workshop participants, more than 1,100 trained the trainers across industries and across various countries like India, UK, UAE, and USA. He has actively executed more than 50 organization development projects. His Mind Clinic in Ahmedabad has been running for 17 years and has been counseling and giving therapy. It's now time to meet the magician himself. Thank you very much. Am I audible? Okay, awesome. Super. Okay, किसी को डायबिटीज़ है हाँ मत बोलना मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि okay, let me try speaking here. हंसी मजाक से किसी को डायबिटीज़ होता है ऐसा हो तो पहले बता दीजिएगा यार क्योंकि सीरियस होना समझ में नहीं आता मुझे थोड़ा सो आई कैन बी सीरियस आई विल बी सिंसियर अबाउट व्हाट वी डिस्कस व्हाट वी टॉक but being serious is not something. I mean, for that we have got 5-star hospitals in Ahmedabad and India. I guess those are the right places to be serious at, not this, right? Because seriousness is a boredom, and boredom is just right there to death, right? So we have better things to do in life rather than getting bored. So I hope we all are okay with that, right? Maybe yes, no? Okay, awesome. So first of all, I would like to thank Mallika ma'am. इतनी तो खुशामद मेरी माँ ने कभी नहीं करी मेरी. Right, so she's sitting right here. So yeah, it's always good to hear about the things those we have done some way or the other. It's very well said that yeah, the primary objective and primary motive is to touch different lives. There are different ways we all touch lives. There are different ways we all interact with each other, and I guess this is after a long time I'm meeting such a young crowd. Okay, not talking about parents, so please don't be so happy about it. Okay. I just got my first friend here, Anish, right? Hi, Anish. Yeah, so he's my first friend. I mean, he was almost the first one other than two young guys sitting at the back bench, right? He was the first one after them. So hi to you guys also. Great. Okay, सबका हिंदी में इनकमिंग चालू है? कंफर्म ना? ठीक है. इंग्लिश में भी चालू है? ठीक है. थोड़ा थोड़ा गुजराती? नहीं? अनीश ऐसे आप मना नहीं कर सकते यार. You are my best friend यार. जस्ट अभी तो दोस्त बने अपने. Okay. That's okay. That's okay. So yeah, the reason I asked is language हम थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश switch करते रहेंगे just to meet the comfort of everyone. I'm not saying that we don't know English, but कुछ चीज़ें हिंदी में ही मज़ा आती है. Right? Good. So I like that in that.
ग्रेट, सो शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या बोलना था वो मैं भूल गया, बट यस, I was planning for this workshop since last 2 days. तो it's like thinking over in my mind, क्या करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे. And when nothing crosses my mind, I go to some movies and I'm like, "Okay, चलो कोई मूवी शूवी देखते हैं." But then there's a beautiful thing I came across. आवाज आ रही है सबको? Okay, मुझे वो लग रहा है हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ मैं. So I thought there is a better place to talk. He is expert in everything. So उन्होंने मुझे बताया कि इससे ये दायरे से ज़्यादा आगे नहीं जाना है. So he has put a boundary for me and I'm adhering to that boundary. एक बहुत अच्छी सी कविता है. Super awesome. Thank you. चालू है सर? Okay. Superb. Great. So it goes something like this. It says that वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, तो एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत. उसके बाद क्या आता है? अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ. अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ. अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. आई एम श्योर ये हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी होगी. अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने. ये एक ऐसी चीज है, ऐसी सुंदर कविता है, इसको कहीं भी आप फिट कर लो हो जाएगी. और लगभग लगभग जिंदगी के कोई भी मोड़ पे, जिंदगी के कोई भी मोड़ पे इसको फिट कर लो हो जाएगी. स्पेशली आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विच इज लाइक स्टडी स्मार्ट. ठीक है, अंडरस्टैंड पेरेंट्स का भी डेफिनेशन कई बार अलग अलग होता है स्टडी का. स्मार्ट की बात तो कर ही नहीं रहे अभी हम, फिलहाल तो हम सिर्फ स्टडी पे है ना. तो स्टडी का डेफिनेशन सबका अलग अलग होता है. हम सबने बचपन में एक सुंदर सी एक कहानी सुनी होगी, विच इज लाइक अ टॉर्टोइस एंड अ रैबिट. टॉर्टोइस एंड रैबिट, सी दिस इज कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड. ओके, सो टॉर्टोइस एंड द रैबिट. क्या होता था सर उसमें? टॉर्टोइस रैबिट वाली कहानी में क्या होता था? आपके बाजू में. हाँ जी सर. रेस किसके लिए? कौन जीतता है? रैबिट क्यों हार जाता है मैडम? बैंग ऑन. तालियां है ना, लोग अलग अलग रीजन से बजाते हैं. मैं बोला और कोई ना मिले तो सेल्फिश होके बजा लो. नाम है आपका? दृष्टि, धैर्य. सो दृष्टि ने एक बहुत ही अच्छा वर्ड उसमें यूज किया, घमंड. घमंड तो किसी का भी नहीं रहा यार. बाकी तो रैबिट का क्या रहेगा फिर? इसमें पॉइंट ये है कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में उन्होंने यही बताया है कि एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत. व्हाट इज सेइंग इस, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तब बहुत सारी बार ऐसा लगता है यार अब ना हो पाएगा हमसे. कई बार होता है कि अब बहुत पढ़ लिया, आज के दिन बहुत पढ़ लिया, अब नहीं हो पा रहा है, लेट मी रेस्ट फॉर अ व्हाइल. यस, हम दोनों सेम है यार. मैं बुक लेता हूं, मुझे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, और आपका होता है थोड़ी देर पढ़ने के बाद. बस फर्क इतना है सिर्फ. तो यही होता है ज्यादातर कि एक लाइफ में एक पड़ाव आता है. कुछ लोगों का बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों का पीएचडी और एमफिल करने के बाद भी नहीं आता, विच इज अ वेरी गुड थिंग.
आई एम टॉकिंग अबाउट डेली पॉजेज विच वी टेक. हर रोज कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में कुछ पॉजेज लेते हैं. कितने सही है, कितने वाजिबी है, वो हम आगे बात करेंगे. दूसरी पंक्ति बहुत सुंदर है इसमें. तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी कभी, तू ना मुड़ेगा कभी. गाइस, पढ़ाई में थकना और रुकना ये दोनों ही मनाही है, बट सही टाइम पे रुकना वो बहुत ज़रूरी है ना. अभी थोड़ा सा है ना, मैं इसमें कंफ्यूजन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्योंकि कंफ्यूजन इज अ लैडर टू क्रिएटिविटी. जब तक कंफ्यूजन नहीं होगा ना अंदर, तब तक हमें लगेगा अरे नहीं सब कुछ एकदम स्मूथ जा रहा है, लेट्स गो अहेड विद द फ्लो. तब तक वही होता है. दिमाग अलर्ट तब होता है जब कंफ्यूजन होता है. कभी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा किसी का ऐसा हुआ है कि कोई रास्ता भूल गए लॉन्ग ट्रिप में, कार लेके जा रहे हो और रास्ता भूल गए ऐसा. हाँ जी सर, कौन से सिटी में हुआ था आपका? महाराष्ट्र में. क्या हुआ था फिर जहां पे रास्ता भूल गए, फिर क्या किया? गूगल ने भी गूगली दे दी. दैट्स राइट, गूगल ने भी गूगली दे दी. यस अनीश. ये बेस्ट रास्ता है. ना तेरा ना मेरा, यहाँ पे मेरा ही चलेगा. और एक दिन हम एक जगह पर गए थे, हमें घर आने का थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हमने गूगल लगाया, तो गूगल 2 बार हमें गूगली देगा. हाँ मतलब बार हमें घुमा रहा था. So, तो मैंने बोला कि अब गूगल की क्लास ली जाएगी. अभी आज लेते क्लास, इसके बाद उसी का नंबर है. ये जब रास्ता घूम जाता है ना, तब तक एकदम स्ट्रेट दिमाग में कुछ पता भी नहीं है गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, कौन सा रास्ता ले रहे, सीधा सीधा हाईवे है, वी आर जस्ट गोइंग अहेड. जब रास्ता भूल जाता है, जब कंफ्यूजन होता है ना, तो मतलब दिमाग बिना रेड बुल पिए विंग्स आ जाते हैं उसके. दैट इज व्हाट इट हैपेंस. सो व्हिच मींस कंफ्यूजन इज अ लैडर टू क्रिएटिविटी. जब भी पढ़ाई करते हो, स्पेशली फॉर those friends who are studying here, जहां पे भी आपका confusion होता है ना, वहां पे be rest assured that you will have to explore a lot. and जितना आप explore करोगे उतना आपका knowledge बढ़ेगा. सेम एक सिंपल सा मैंने रास्ता दिया, सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि जब भी रास्ता भूल जाता है ना, तब हमें पता चलता है कि ये चौराहे में चारों रास्ते कौन सी तरफ जाते हैं, सब पता चल जाता है. अगर वो क्रॉस रोड पे हम खो गए, 2 रास्तों पे नहीं जाना है, ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, मुझे स्ट्रेट जाना है, बट उस टाइम पे पता चल जाता है कि भाई राइट वाला रास्ता कहां पे जाता है और लेफ्ट वाला. सो व्हेनेवर देयर इज कंफ्यूजन, देयर इज लॉट ऑफ क्लैरिटी. आगे बढ़ने से पहले देयर इज अ ब्यूटीफुल लेसन व्हिच आई गॉट इन वेरी यंग एज. तो बचपन में मम्मा पापा ये बोलते थे कि बेटा या तो, मतलब पढ़ाई करने में तो हम भी चोरी थे, एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात तो है नहीं, राइट. सो हमेशा एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताई थी कि या तो अभी मजदूरी कर लो पढ़ाई करने में और ज़िंदगी भर ऐश करो, या फिर अभी ऐश कर लो और फिर ज़िंदगी भर मजदूरी करो. चॉइस इज योर्स. 2-4 बार बोला तो समझ में नहीं आया, राइट. फिर कभी स्कोर्स ने धोखा दिया, कभी टीचर ने एक्चुअल वाला धोखा दिया, गुजराती वाला. तब धीरे धीरे सब समझ में आ गया. आजकल तो चलो सब बैंड हो गया, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट शायद जब हम सब लोग पढ़ाई करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द किड्स बट द पेरेंट्स, तब इजीएस्ट समझाने का तरीका इजीएस्ट था ना टीचर का. एक आवाज आती थी छम और सब समझ में आता था. इट्स लाइक अ नो टॉक थेरेपी. कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, एक बार छम की आवाज आएगी सब ज्ञान आ जाएगा. ऐसे ही स्कूल में भी एक बार हुआ था, एंड उस दिन समझ में आया कि भाई बताना क्या चाहते हैं. दिस फॉर एवरीवन, दिस व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. जितना जल्दी सीख ले उतना अच्छा है.
अभी अगर पढ़ाई में जितनी मेहनत करेंगे, मजदूरी थोड़ा सा डाइल्यूटेड वर्ड है, बट जितनी मेहनत अभी पढ़ाई में कर लेंगे ना हम, उतनी आगे जाके कंफर्ट मिलेगा। और अभी अगर कंफर्ट चाहिए कि नहीं, ऐशो आराम करते हैं, मजे मारते हैं, ना कमाने की झंझट है, स्कूल तो वैसे भी ऑनलाइन हो गई है, मोबाइल गैजेट्स तो 24/7 अपने लिए हाजिर है। सो अगेन चॉइस आपकी है कि अभी इन सब चीजों में ऐश करनी है, मजे मारने हैं, या फिर अभी थोड़ी मेहनत ज्यादा करके आगे वाली पूरी जिंदगी मजे मारने। सो अभी का क्या है, वो 5-7 साल मिलेंगे मजे करने के लिए, जस्ट अ मैटर ऑफ 5 to 10 years. What about remaining 70 years? So better is अभी 5, 10, 15 साल जो भी है मेहनत करने के स्टडीज में, let's do that. एंड उसके आगे के जो भी 70 साल है, that's going to be the chilled one. मतलब फिर जैसे उन्होंने बताया, अब मैं अपना रास्ता लूंगा ना, यू कैन चूज योर वे। आप अपना रास्ता चूज कर पाओगे, वरना लोग आपके लिए रास्ता चूज करेंगे, बेटा तुमसे ये ना हो पाएगा, तुम वहीं रहो, then people will choose a way for you. So this is the beautiful life lesson which I got in initial days of my life, not just the career. एक quick question, अगर हम किताब लेके बैठते हैं, राइट, और शुरू करते हैं पढ़ना, और जब तक समझ में आ रहा है, दिमाग के डिब्बे में चीजें जा रही है, हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, वी आर एबल टू डिसाइफर द मीनिंग्स आउट ऑफ इट, लगभग ये टाइम स्ट्रेच कितना होता होगा अंदाजा, जहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं और जहां पे हम, अब फिर ऐसा हो जाता है कि अब दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होता है ना कई बार, माइंड गेट्स चॉक्ड, कई बार काम करते करते दिमाग चौक हो जाता है, कई बार पढ़ाई करते करते हो जाता है। सो ये लगभग टाइम स्पेन कितना होगा, अटेंशन स्पेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये अटेंशन स्पेन लगभग कितना होगा अंदाजा? 3 घंटे। सुपर ऑसम। व्हाट एल्स? लगभग 20 मिनट्स। ओके ग्रेट। आधा घंटा। एक्सीलेंट। ये तो 2 है ना, मगर 1। ओके ठीक है, मतलब राइट वाला 1, लेफ्ट वाला 1 नहीं, ठीक है। ओके हाँ जी सर। डिपेंड अपॉन द बुक, डिपेंड्स अपॉन द बुक, यस। 40 मिनट्स। ओके, तो कोई 20 मिनट से नीचे बार्गेनिंग में कोई चाहता है कि उससे कम? नहीं, ठीक है। 4 घंटे से 3-4 घंटे से ज्यादा कोई? ठीक है। कभी-कभी हिंदी में जाता है, कितना? हिंदी में शायद 20 मिनट से कम। हाँ, मतलब वो 20 मिनट्स बहुत सारी बार रिपीट हो जाते हैं, राइट? मेरी हिंदी की फायदा दिखानी। ऑसम। सो आज हम सबके लिए पार्टी है। हाँ जी। Depends on your interest. डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, राइट? If you are interested in particular subject, there is no limit. सुपर। सो अगर वो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। और अगर मेरे जैसे को मैथ दे दिया तो बुक खोलने से पहले ही उबासी आ जाती है, राइट? सो don't ask me how did I clear my commerce. I also don't know, right? I was chalked in the exam, but somehow I cleared it. So that is how it is. There was a study by University of Michigan. They studied the numbers of graduates, fresh graduates, and the ones who have just enrolled in the first year of graduation. They did this survey, and the average time which came up was approximately 18 to 20 minutes, right? Now this is about the studies I'm talking about. If you talk about work, you said 40 if I'm not wrong, right? If you talk about the work, it is approximately 40 to 45 minutes of a cycle. जब काम की बात करते हैं तो 40 से 45 मिनट का एक साइकिल बन जाता है. So which means if we are talking about studies, it is approximately 20 minutes of a cycle which is there. एक बहुत सिंपल सी चीज और बताऊं तो टेड टॉक्स पता है ना हम सबको, TED टेड टॉक्स. उसका एक एपिसोड का जनरल लेंथ
is approx 18 minutes. Max is 20. Max is 20. There are a lot of studies across the globe जो बताते हैं कि attention span 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है. फिर भी हमारे स्कूल में लेक्चर्स कितने मिनट्स के होते हैं? 30 minutes, 45 minutes, right? कुछ लोगों का ट्यूशन 2-2, 3-3 घंटे चलते हैं. So I'm sure and I hope and I cross my fingers that all the faculty members, they know how to balance remaining 40 minutes or 20 minutes or 25 minutes. I cross my fingers that I wish they know it. But if they don't know, तो 20 मिनट्स के बाद संपला, सगड़ा संपला. फिर वो मुंगेरी लाल के हसीन साहब ने एक बहुत पुराना सीरियल था, मतलब मुझे याद भी नहीं है कोई उसका एपिसोड, पर नाम याद है मुझे. So after 20 minutes you are almost in your dream world or you are half sleepy. Well, I know अपना भी सेशन है लगभग वो 70-75 minutes का है. I remember that. I'll do my best not to let you sleep. So इसका मतलब ये है that we should follow. Yes or no? Should we follow this? Yes or no? At a stretch, 30 more, little more. Yes, no? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बस पढ़ते रहो. नहीं? Yes, पागल हो जाएंगे. या exactly, it will be a fatigue. You know, you will be like half dead after a while. I had a friend and I just called up before 2-3 days. I'm like, you were saying what was your general attention span? उन्होंने ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने तो बोल दिया. इंडिया में उन्होंने कितना स्टडी किया होगा पता नहीं. 2-4 ऐसे ही दोस्तों को कॉल किया मैंने. I just asked. She like, I used to study for 6 hours at a stretch. I'm like, okay, very good. Then I realized she was a resident medical student, right? तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं था. बट यस स्टिल देयर आर बेटर वेज टू स्टडी. 6 hours एट अ स्ट्रेच करो तो उसमें क्या होगा? योर ग्राफ starts from here, you are at the peak, okay, gradually it is here till approx 20-25 minutes and it starts dropping. फिर क्या होता है? समझ में आना बंद हो जाता है बिकॉज इंटरेस्ट नहीं है ना. She said very right, it's a fatigue stage. वो समझ में आना बंद हो जाता है. जैसे ही समझ में आना बंद हो जाता है इंटरेस्ट कम होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है. और जैसे इंटरेस्ट कम होना शुरू होता है तो इंटरेस्ट कहां पे कम होता है? सब्जेक्ट पे या पढ़ाई पे. डू वी एग्री? इंटरेस्ट जब कम होना शुरू होता है तो वो सब्जेक्ट पे या पढ़ाई पे इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है. वो सबसे बड़ी तकलीफ है. आपने आज 3-4 घंटे पढ़ाई करी. इफेक्टिव लर्निंग कितने टाइम का हुआ होगा लगभग? इफेक्टिव पढ़ाई इनिशियल 20-25, मैक्सिमम 30 मिनट्स. इफेक्टिव में बोल रहा हूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है. इफेक्टिवनेस की अगर बात करते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली 20-30 मिनट्स. उसके बाद का जो भी है विच इज अ स्लम्बर डाउन. तो अब ये 20-30 मिनट के बाद का धीरे 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 समझ में नहीं आ रहा है. उसके बाद धीरे धीरे और कुछ सब्जेक्ट लोगे, सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है. एंड ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन इज यू विल स्टार्ट हेटिंग द सब्जेक्ट क्योंकि वो मैं समझ में नहीं आ रहा है. So the best thing to do here, before you get into that 20 minutes का cycle, जैसे आप सब लोगों ने बताया कि it depends on the subject, right? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. So for example, you give me a psychology का topic, probably I also can read at least for 1 or 2 hours because that is something which is very close to my heart. It is something which is of my not just routine, but it is my it is something which is very close to my heart. तो मुझे इतना पसंद है कि वो शायद मैं भी उसको 2 घंटे पढ़ लूंगा. But the best thing to do is एक स्टॉप वॉच ले लीजिए, right? The moment you open the book, start it. The moment you feel कि अब अंदर कुछ नहीं जा रहा है,
द मोमेंट यू फील कि अब अंदर कुछ नहीं जा रहा है, स्टॉप देयर, रिकॉर्ड दिस, रिकॉर्ड दिस. इससे एक चीज आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. क्या क्लैरिटी मिलेगी? क्या क्लैरिटी मिलेगी इससे? योर कैपेसिटी, राइट, फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट वाइज करना है, ओके सिर्फ नॉर्मली एक बार कर लिया ऐसा नहीं, डू इट सब्जेक्ट वाइज. आज मैथ के लिए कर लिया, राइट, फिर सोशल स्टडीज के लिए कर लिया, फिर फिजिक्स के लिए कर लिया, या केमिस्ट्री के लिए कर लिया, या जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए कर लिया. डू इट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं. जब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आप ये ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा सब्जेक्ट वाइज आपका अटेंशन स्पैन कितना है. क्योंकि ये जरूरी ना, कभी पता चला कि आपका कोई एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें आप 1.5 घंटा बैठ सकते हो, फिर भी आप हर 20 मिनट में खड़े हो रहे हो, तो दैट डजंट मेक सेंस. और कई बार ऐसा है कि जो सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है उसका हमने अटेंशन स्पैन 1 घंटा मान लिया, और उसमें एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि 20-30 मिनट के बाद कुछ नहीं जा रहा है, विच मीन्स 30 मिनट्स वी हैव वेस्टेड फॉर नो गुड रीजन. सो आई वुड से डेफिनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हैज डन अमेजिंग स्टडी. कभी आप गूगल करके वो स्टडी देखेगा, इट्स एक्चुअली फैंटास्टिक स्टडी. दे हैव स्टडीड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बट आई वुड से खुद को स्टडी कर ले वो बहुत है. उन्होंने थाउजेंड्स कर लिए, 1001 हम कर लेते हैं. आई विल स्टडी माई सेल्फ. मेरा सब्जेक्ट वाइज अटेंशन स्पैन कितना है, लेट मी स्टडी दैट, लेट मी अंडरस्टैंड दैट. दूसरा एक मिथ ये होता है, आई मीन एक मिथ तो ये है कि भाई बहुत पढ़ना चाहिए, पूरा दिन पढ़ते रहो. अरे बचपन में हमारी भी सुताई होती थी कि बाजू वाला देखो 12-12 घंटे पढ़ता है, हम 2 घंटे पढ़ के वीडियो गेम खेलने बैठते थे. आई एम नॉट सेइंग दैट इज द राइट थिंग, ओके, दैट इज सर्टेनली नॉट अ राइट थिंग. बट ये जरूर चाहिए था कि एक लेवल के बाद एक पॉज बहुत जरूरी होता था. दूसरा एक मिथ ये बोलते हैं, मिथ तो नहीं बोलेंगे उसको, बट दूसरी एक चीज ये बोलता है कि ओके, व्हाट इज द बेस्ट स्टडी टाइम, बेस्ट टाइम टू स्टडी ड्यूरिंग द डे? मॉर्निंग्स. कितने लोग अग्री करते हैं कि मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी? ओके, सुपर ऑसम, थैंक यू. वेल, आई ऑल्सो अग्री विद दैट. ओके, नॉट दैट आई डू नॉट अग्री. 2 ऑप्शन है. अगर आपका बॉडी क्लॉक मॉर्निंग के हिसाब से एडजस्ट नहीं है तो ग्रेजुअली उसको एडजस्ट कर लो. कुछ स्टडीज ये बोलते हैं इट टेक्स 21 days टू बिल्ड न्यूरॉन्स इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, और उसकी वजह से वो जो न्यूरॉन्स बिल्ड होते हैं उसकी वजह से वो आपका हैबिट बन जाता है. कुछ स्टडीज ये बोलते हैं इट टेक्स 60 days. बट बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलता है चाहे 21 दिन लगे चाहे 60 दिन लगे, करते रहो हर रोज. हमें वो प्रैक्टिस नहीं करना है कि 60 दिन के बाद मैं सुबह उठूंगा नहीं, आज उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा हूं अपने आप. वी डोंट वांट टू डू दैट, जस्ट कंटिन्यू दैट. उसे बहुत अच्छा फायदा ये है मॉर्निंग में, यू डोंट हैव एनी डिस्टर्बेंस, यू डोंट प्रैक्टिकली यू डोंट हैव एनी डिस्टर्बेंस. सो वंस अगेन दिस इज बेस्ट टाइम डेफिनेटली इज मॉर्निंग. और मॉर्निंग टाइम में जब स्टडी करने बैठते हो, पिक अप अ टॉपिक जहां पे सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्टी हो, यू नो, विच ईट्स अप योर हेड टू मच, जिसमें प्रैक्टिकली आपको बहुत सारा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े. अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चंकिंग मैथड, विच इज 30 minutes chunking. Study 25 minutes, wait for 5 minutes, like do some activity, do what makes you happy. Definitely does not mean gadgets, huh? So I'm giving a disclaimer here. फिर हाँ 5 मिनट है, हम वीडियो गेम खेलेंगे, और वीडियो गेम में 5 का 50 मिनट कब होता है वो नहीं पता चलता है. मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, राइट? नहीं समझ में आता है वो चीज. सो डेफिनेटली इट डज नॉट मीन गैजेट्स. कुछ बड़े बच्चे भी यहाँ पे तो लाइक सुनो थोड़ी देर फेसबुक कर लेते हैं, इंस्टा देख लेते हैं. स्ट्रिक्ट नो. Because that will not, let you put a time boundation of 5 minutes. वो 5 का 50 by default will happen. So for this 5 minutes, talk to parents, talk to a friend, right? Just move around in the house. और कुछ नहीं तो 2 सीढ़ियाँ चढ़ लो.
आई नो ये प्रैक्टिस बहुत कम है या तो जनरली हम नहीं करते ये, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू. It puts your brain to the utmost alertness. So it's again a very beautiful thing to do. Put this 30 minutes chunking method, 25, 5 minutes of something interesting. Gadgets के अलावा कुछ भी कर सकते हो और सोने के अलावा. उससे ज़्यादा ले सकते हैं, बट वो फिर है ना, हम उसमें ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे ब्रेक में और पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा. सो जितना वो ज़्यादा होगा, क्योंकि दैट इज समथिंग विच इंटरेस्ट अस, राइट, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगता है, और जो चीज़ अच्छी लगती है वो 5 मिनट भी कर ली तो भी बहुत रिस्की है, और उससे ज़्यादा कर लिया तो फॉर अ टॉस, राइट, स्टडीज आर फॉर अ टॉस. फिर वो किताब है ना थोड़ी दूर 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 होती जाती है, या तो हम उससे दूर 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 होते जाते हैं. सो दैट्स द प्राइमरी रीजन. So the mind cleaning, we simplify the psychology. It is preking or partnering. It's simple. You have to choose one out of this. जो भी चीज reinforce करी जाती है ना, हम सब में, ये सब बच्चों के बारे में बात नहीं, हमारे लिए भी बात है. जो चीज reinforce करी जाती है, reinforce मतलब सपोर्ट किया जाता है, हेल्प करी जाती है जो चीजों में, ऐसी जितनी भी चीजें हैं ना, वो बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी आता है. एक अभी I'll not take the name of a brand, but टीवी में एक बहुत अच्छा भी एक ऐड आ रहा है कि अब तो मैं तेरा पार्टनर हो गया, समथिंग लाइक दैट, राइट? यू रिमेंबर दैट ऐड? एजुकेशनल पोर्टल के बारे में है. सो हाई पार्टनर करके अपने बच्चे को वो बुलाता है हाई पार्टनर, राइट? सो विच इज पेरेंट्स नीड टू बी पार्टनर्स. हमें लगता है कि नहीं, हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना है, स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो बच्चा ही बोलेगा मेरा काम सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब आप करो. नहीं चलेगा ना. तो वैसे ही हमारे लिए भी वी हैव टू बिकम पार्टनर इन द स्टडीज. आई एम नॉट सेइंग दिन के 4 घंटे डिवोट करो, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स अ डे. पॉसिबल? ऑल द पेरेंट्स, राइट? एटलीस्ट 15-20 मिनट्स अ डे. स्टार्ट बिकमिंग पार्टनर. रादर देन क्या पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई करी. Rather than that, can you try, okay, teach me something new. How many times have we done this? किया हो तो बहुत अच्छा है, I'm happy about it. किया हो तो बहुत अच्छा, और definitely I promise you उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा. Definitely कुछ कुछ नया सीखने मिलेगा. Try doing this someday. Try asking them. And that will be fun. Learn something from them. Let them share their knowledge. और आप देखोगे उनका कॉन्फिडेंस उसके बाद जो है ना, मतलब दे आर एट मार्स राइट नाउ. दे आर द सेवन स्काई. पापा ने पूछा यार, मम्मा ने पूछा, कुछ सीखना है उनको. स्कूल में जाके सबको बताएंगे मैंने मम्मा को ये सिखाया आज, मैंने पापा को ये सिखाया आज. बट ट्रस्ट मी, दैट्स वर्थ इट. अब वो है ना, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे. किसके लिए पढ़ेंगे? सिखाने के लिए पढ़ेंगे. वेल, कंक्लूड तो मैं पूरा वर्कशॉप यही टॉपिक पे करने वाला हूँ, बट वो अब जो है, अब वो आपको सिखाने के लिए पढ़ रहे हैं. स्टार्ट बिकमिंग पार्टनर. स्टार्ट रीइंफोर्सिंग रादर देन पनिशिंग. और गुब्बारा जो होता है ना, उसने अब चाहे टैप कर करके कितना भी खेल लो, बट सेफ्टी पिन से खेलोगे तो इट बर्स्ट, राइट? बच्चों का भी वो होता है, बस कई बार ये होता है वो बोल नहीं पाते. पढ़ 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 पढ़, मन में तो होता है नहीं पढ़ना है. हाँ ठीक है, किताब लेके बैठ गया, आधे घंटे बाद पता चला किताब उल्टी थी. होता है ये चीज, बिकॉज वी आर पोकिंग सो मच. उससे अच्छा है ट्राई डिफरेंट वेज टू क्रिएट देयर इंटरेस्ट द स्टडीज. सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं, ठीक है ना, कुछ अलग अलग तरीके करो. प्ले सम गेम्स, एजुकेशनल गेम्स. देयर आर लॉट ऑफ पजल्स व्हिच आर देयर. मैथ नहीं समझ में आ रहा है, मैथ के पजल्स कुछ करो. ट्राई वैदिक मैथ. समझिए, मुझे मैथ में कुछ समझ में नहीं आता था. द डे आई स्टडीड वैदिक मैथ, आई एम लाइक, ओह, आई एम फॉलोइंग इन लव विद मैथ नाउ. मतलब वो तुरंत, मतलब तू पहचान कौन से एकदम से, यार वी आर बेस्ट बडीज नाउ. आई एम नॉट सेइंग वैदिक मैथ इज द ओनली वे. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज. छोटे छोटे पजल्स. एक छोटा सा पजल कोई सॉल्व करेगा ना, इट विल बी फन. ट्राई एडिंग सम फन. So again, वो 5 मिनट का ब्रेक. You can try this also.
Okay, there are few letters which I will tell you. Let's see how many of us are able to remember that. Okay. E, V, A, D, J, G, N, A, D, E, V in the same sequence. I'll say that one more time. E, V, A, D, J, G, N, A, D, E, V. Anybody want to give it a try? Yes, please, ma'am. God bless you. Very nice. Anybody else who would like to give it a shot? Well, it's yes, ma'am. Okay, thank you. Last shot, anyone wants to take? Anybody wants to take a last shot? Okay, great. Let's try the different one. T O D A Y I S A F U N F R I D A Y. You want me to say that once again? Yes. Should I say that once again? Yeah. Okay. T O D A Y I S A F U N F R I D A Y. Yes, sir. T O D A Y I S F R I E F R I D A Y. Okay. T O D A Y I S A F U N F R I D A Y. मुझे ये बताओ, हाँ जी, पेपर फोड़ दिया। समझ में आया, याद रहा? टेल मी व्हाट डिड वी डू? समझ में आया ना? याद रहा? किसी को याद रहना था तो पहला वाला याद रह जाता, राइट? वो और कुछ नहीं, मेरा नाम मैंने उल्टा लिखा था। दैट्स ऑल आई डिड। I just wrote Vedang Jedave. That's what I wrote. But दूसरा वाला क्या हुआ? समझ में आया या याद रहा? समझ में आया. Which means the rote does not work unless you are understanding. Right? Unless you are understanding, it doesn't work. वरना फिर हाँ, unless you are चतुर then it's okay. You all know चतुर, right? 3 Idiots, right? हाँ, रट्टा मार. चतुर हो तो अलग बात है आप लोग, अगर वो नहीं हो तो फिर रट्टा मारना काम नहीं आएगा. You have to understand that. And honestly speaking, there is no alternative to that. समझने का कोई alternative नहीं है. Which means, what are you focusing on? Are you focusing on concepts or the facts? Concepts or the facts? What is it? So, TODAYISAFUNFRIDAY, ये concept था या fact था? ये fact था, right? But क्या आपने बताया था? ये क्या था? Today is a fun Friday? Concept. So now there are a lot of facts, there are a lot of concepts. The moment you start turning the facts into concepts, it will be fun. It is like who is the father of psychology? Who is the father of psychology? Anybody? No? Yes, sir. Yes, Sigmund Freud. Right? So Sigmund Freud is known to be a father of psychology. So now
Sigmund Freud is what? Concept or a fact? It's a fact. But psychology is what? Concept or a fact? It's a concept. बाद में किसी को सिगमंड फ्रॉइड याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है. I mean, पढ़ाई के टाइम जरूरी है, सॉरी. उस टाइम पे सिगमंड फ्रॉइड का स्पेलिंग भी सही लिखना है. But otherwise, the moment you start understanding the concept, it will build your interest to remember the facts. But जब तक concepts clear नहीं होंगे तब तक याद रखूं क्यों मैं इसको सिगमंड फ्रॉइड को? I have no reasons to remember him. And if I actually don't have reasons to remember him, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड अच्छा है, सुनने में अच्छा लगा. That's it. So make it meaningful. Whatever you are studying, make it meaningful. Okay. Now we're playing a different game. ठीक है? Everyone ready? All ready? Yes. So क्या करेंगे हम? मैं आपको एक वर्ड दूंगा. वो वर्ड के साथ आपके दिमाग में जो भी पहला शब्द आता है वो आप बोलोगे. ठीक है? I'll give you a word. Whatever association comes in your mind, whatever, you have to say that. Are we all sorted? Out loud. Yes, say it out loud. Thank you very much for that. ये डिस्क्लेमर तो रह ही गया था, वरना हम तो सब बोल रहे हैं ना, मन में बोल रहे हैं. हाँ, वो नहीं. और एक साथ सब साथ में बोलेंगे. Yes, no, everybody, say yes. Okay, super. फुटमैट, जल्दी, जोर से, फुटमैट. ओके, सो मैं शायद ठीक से बताया नहीं. हमें जोर से बोलना है और हम सबको बोलना है. ठीक है? Did you all get this? हम सबको बोलना है. Again we will start this. ठीक है? फुटमैट. ओके, मोबाइल. डाइनिंग. बॉल. काउच. स्टडी टेबल. लिविंग रूम. बीन बैग. स्टडी टेबल. टेलीविजन. गार्डन. बेड. चेयर. स्टडी टेबल. टेरेस. लैंप. रेडियो. स्टडी टेबल. देखो, मतलब इन शॉर्ट मुद्दा इतना ही है. स्टडी टेबल इसलिए रट्टा करवाया, घर जाके पढ़ाई करनी है. यू कांट से कि वर्कशॉप में जाके पढ़ाई नहीं होगी आज. सो दैट इज अ प्राइमरी मोटिव. हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास थोड़ा सा बड़ा किचन होगा. राइट? डू वी हैव बिग किचन? ओके, वी हैव बिग किचन, राइट? डू यू स्लीप इन किचन? यस, नो? नो. किसी को कोई अच्छा सा बड़ा सा लेविश सा बाथरूम या बाथटब? बाथटब किसी के बाथरूम में है? ओके. डू यू स्लीप इन द बाथटब? ऑफ कोर्स नॉट. ओके, थैंक यू. किसी वेदांत के पास है, उसको पूछना पड़ेगा फिर. बट हाँ, वो भी सोता नहीं है बाथटब में, दैट इज फॉर श्योर. वी ऑल हैव टेरेस, मोर लेस. या तो शेड होगा या तो खुद का, बट है. बारिश को छोड़ के टेरेस पे नहाने जाते हैं कभी? नहीं जाते, राइट? जब हम हर एक चीज उसकी जगह पे करते हैं तो पढ़ाई फिर अतरंगी जगहों पे क्यों करते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल एक्चुअली स्टडी इन द बेडरूम. और वो एक्चुअल फीलिंग ऐसी होती ना, मतलब मैं भी कई बार स्टडी करने तो नहीं पढ़ा, ऐसे कैजुअल रीडिंग के लिए. सो आई माई बैड हियर, बाजू में चेयर लगा के आई टाइम से. वो एक्चुअली होता है वो धीरे धीरे से, वो जैसे, हाँ, वो हॉरर मूवीज होती है ना, उसमें एक ही जन को आवाज सुनाई देती है, इधर आओ. ये वैसे बैड ऐसे बुलाता है, इट इज सो टेम्पटिंग, लाइक आजा आजा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और. 10 मिनट के बाद बेड पे नहीं, मैं तो अभी भी बैठा हूं. एक्चुअल पहले जो पोजीशन होता है वो ऐसे होता है. आई एम लाइक सिटिंग अपराइट
धीरे 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 एंड लाइक हाँ सो ये फिर चलो छोटी सी झपकी मार लेते हैं 5 मिनट बस। और ये 5 मिनट की झपकी 50 मिनट कब होती है तब नहीं समझ में आता है। It is certainly not the right place to study. Study has to be where? Study table. It has to be at the study table. No doubts about it. हाँ कई बार जस्ट कैजुअली छत पे चक्कर मारते हुए हमने पढ़ लिया या ऑडियो लेक्चर सुन रहे, दैट इज स्टिल ओके। वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, यू जस्ट वांट टू बी लिटिल रिफ्रेश, थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए, छत पे चक्कर मार लिया, जस्ट वॉकिंग अराउंड, दैट्स सेकेंडरी थिंग, बट दैट इज नॉट कॉल्ड स्टडीज। प्राइमरी मोटिव एट दैट टाइम इज नॉट स्टडीज। So study is studies. It has to be at the study table. ये भी है कि कई बार हम में से कुछ लोगों के पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा स्टडी टेबल ही हमारे बेडरूम में है। सिंपली यू गो टू द हॉस्टल्स, व्हाट इज इट, उनको अलग से स्टडी रूम नहीं दिया जाता ना, उनको एक स्टडी रूम दिया गया है, उनको एक बेड दिया गया है, बेड के बाजू में कबोर्ड है, कबोर्ड के बाजू में स्टडी टेबल है, और कई बार तो वॉशरूम अटैच भी नहीं होता है, राइट, इन फ्यू हॉस्टल्स। तो उसमें क्या करें अभी, या तो घर पे भी हमारे बेडरूम में ही स्टडी टेबल है, व्हाट आइडियली शुड वी डू? Exactly. We should keep our face opposite to the, in front of the wall, right? So I should sit like this, I should face the wall. Dissection कम हो जाएगा, वो आजा 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 वो नहीं होगा ज्यादा, unless you are consciously like 20 मिनट के बाद आ रहा हूँ 2 मिनट रुक जा तू, तो वो फिर अलग बात हो जाती है। यस मैम, एक्सीलेंट। हाँ, दैट आजा आजा विल नेवर हैपन। वो बोलेगा जा 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 तू वहीं पे रुक भाई, तू वहीं पे रुक, वहीं पे ठीक है तू। यू शुड हैव योर क्लियर गोल्स, विच इज कॉल्ड, जब माइंड पावर की वर्कशॉप्स करता हूं मैं तो उसमें हम उसको बोलते हैं विजन बोर्ड। तो एक विजन बोर्ड बनवाते हैं, इट्स ऑब्वियसली फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, सो फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो यू कैन हैव योर ओन विजन बोर्ड। इट्स नाइस वन, सायरन्स कॉलिंग सेलर्स टू द रॉक। मतलब जब सायरन्स बजता है ना समंदर के आसपास, सो इट इज प्राइमरी। जो पहले मिल्स हुआ करती थी, मिल्स में सायरन बजता था, किसके लिए बजता था? एम्प्लॉइज आ रहे, शिफ्ट चेंज, राइट, शिफ्ट चेंज के लिए सायरन बजता था। द सेम थिंग इज हियर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ओके, पाब्लोस डॉग का स्टोरी सुना है सबने, पाब्लोस डॉग एक्सपेरिमेंट? तो एक्चुअली आई विल क्विकली टेल यू दिस एक्सपेरिमेंट। व्हाट हैपेंड इज, देयर इज psychologist Bell, yes. There's a psychologist, Pavlos was a psychologist, and he had a pet dog. So what used to happen is, will somebody say this please? Not exactly, but Whatever, that's okay, मेरे से तो ज़्यादा ही आता होगा। Yes. when the dog will salivate, so if the food is in front of the dog, so definitely dog will salivate. And in the second situation, Bell and the food was kept in front of the dog, and again the dog was salivating. And in the third case, food was taken away and Bell was only there, and still the dog was able to salivate, because brain was trained that because in the second stage food and Bell both were there, and in the third stage food was withdrawn and only the Bell was there. So psychologically dog brain got trained that again I have to salivate because the same Bell is there. Definitely. It is based on psychology. 100% it is there, 100%. Not you think, you are right. It's 100% that. So that is called setting the triggers. So trigger is something we use in therapy. So कोई भी चीज़ का है ना, हम सबके लिए triggers होते हैं। किसी को कुछ भी बोलो ठीक है, वेलकम हंगामा, कुछ तो मूवी था हंगामा अजय देवगन का, तो अगर कोई भी उसको ऐसे उंगली करके बात करता है, उंगली तोड़ देता था, गोलमाल। यस, सो दैट वाज हिज ट्रिगर। एनीबडी टॉक्स टू, उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने ऐसे आई लव यू बोल दिया अगर उंगली सामने करके, तो उंगली तोड़ देगा। व्हाट वाज इट? इट वाज अ ट्रिगर, which means we all have our own triggers.
अगर आपके बेडरूम में ही आपका स्टडी टेबल है, सेट द ट्रिगर्स. जैसे मैडम ने पाब्लो वाला बताया, व्हाट्स योर नेम मैम इफ आई मे आस्क? दीप्ति, थैंक यू. सो जैसे दीप्ति ने बताया दैट उन्होंने क्या किया, ट्रिगर सेट कर दिया कि बेल बजेगी, खाना दिखेगा, डॉग विल साल्वेट. खाना हटा दिया, बेल बजी, डॉग स्टार्टेड साल्वेटिंग. डॉग बेल नहीं खाने वाला था, बट स्टिल डॉग स्टार्टेड साल्वेटिंग बिकॉज ऑफ दे सेट द ट्रिगर. बहुत सिंपल से ट्रिगर्स आप रख सकते हो, जैसे कि कोई एक पेन रख लो आप, कि ये पेन मैं तभी यूज करूंगा जब मैं स्टडी करने बैठूंगा. कोई आप एक डायरी रख लो, that whenever I sit to study, I'll write the start time and end time in this diary, or I'll write some good quote in this diary, और उसके बाद मैं स्टडी शुरू करूंगा. Put something like that. End of the day, what you're doing is setting the trigger. आपके सामने बोर्ड है, अगर बोर्ड के ऊपर कुछ आप लिख दो, that the moment I see this, which means I'm starting to study. I always study smart. Simple as this it can be. एक छोटी सी पर्ची, that also can be your trigger. A simple 2 रुपए की पेन, that can be your trigger. Anything and everything which you believe is your trigger can be your trigger. अगर स्टडी लैंप है, सो वो लैंप वहीं पे यूज होगा, राइट? और वो लैंप को आप ट्रिगर बना दो, उसके ऊपर लिख दो स्टडी लैंप. पेन के ऊपर परमानेंट मार्कर लाके लिख दो स्टडी पेन. इट बिकम्स योर ट्रिगर. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, इट वर्क्स अमेजिंग, फैंटास्टिकली काम करता है ये. दिस इज ऑल इन अ सबकॉन्शियस माइंड. मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, मेंटल है, इमोशनल है, कोई भी प्रॉब्लम है, it is all here and it starts from here. So even your study triggers, they actually start from here. So set the triggers for yourself, for your studies. And facts के लिए quickly facts याद रखने हैं, concepts याद रखने हैं, very easy in terms of you can actually understand the different dynamics. समझ में आ जाएगा. Concepts याद रखने हैं, sorry, facts याद रखने हैं. Use mnemonics. Anybody who would like to tell me what mnemonics is? Right, shortcut to keep the things in mind. किसी को कोई याद है mnemonics? Anybody? Any mnemonics that we remember? Yes, Vibgyor. Right? तो रेनबो के कलर्स वैसे कभी याद, कलर्स के नाम याद रह जाते थे, बट सीक्वेंस में कभी याद नहीं रहते थे. सो इट्स Vibgyor's. Second one, I was just googling that and I found a nice mnemonic, which is, my very good mother just served us 9 pizzas. Planets starting from sun to outward. Right? मेरा favorite उसमें से चला गया pizzas. It is no more a planet now, right? Pluto, but yeah, I miss pizzas. Okay, so use mnemonics. And कोई भी चीज का funny mnemonics बनाओ. You don't have to be very serious about it. कुछ भी add any fun. It can be a nonsense, that's okay. Actually देखने जाओ ना तो जितनी nonsense चीजें हैं ना वो बहुत जल्दी याद रह जाती है. घर से आप यहां तक या जहां से भी यहां तक आए, रास्ते में कम से कम आपने 1000 लोग देखे होंगे. यस नो, कम से कम 1000 लोग देखे होंगे. कितनी याद है उसमें से? शायद कोई भी नहीं. और अगर कोई याद है तो वो 100% कुछ अतरंगा सा ही होगा. मतलब कोई एकदम मिथुन बन के आया है, you know, it's like a green trouser and a red shirt on that, or yellow trouser and a red shirt, like yo, I'm a disco dancer. तुरंत याद रहेगा. शायद आज के 2 दिन के बाद भी अगर आप पूछोगे ना खुद को कि मिथुन के कौन से कलर्स की बात हुई थी, तो यू विल रिमेंबर कि येलो ट्राउजर था, रेड शर्ट था. क्यों? We have put the association, and funnier the association, more the stupid association, you will remember it for a longer time. Make it as stupid as possible, make it as vague as possible, make it as funny as possible. ये हमेशा याद रहेगा. तो अभी मिथुन का ट्राउजर हमें याद रहेगा, येलो एंड रेड. ओके, फर्दरमोर, जैसे मैंने बताया था, दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू be very close to the end of our session, which is
This was my grandfather's lesson. He always used to teach me that, you should teach if you want to study. Because जब आप पढ़ाते हो आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी. I can't just tell you that, hey, you know what guys, do you know Pablo's ringing the bell principle? Oh, you don't know that? Oh, so sad. घर जाके पढ़ के आना. जैसे मैडम ने इतना कंफर्टेबल, इतना इजीली समझा दिया, one has to do that, right? समझाने के लिए. Otherwise, if I start that technical language, याद नहीं है, पूछना मत. So if I start the technical language of that, probably will not understand. Probably समझ में नहीं आएगा, याद तो रहने की बात दूर है. So if you want to teach, you will have to understand it in the easiest possible manner. You will have to create your own examples. Triggers के बारे में हम बात कर रहे थे, right? So triggers के बारे में जो मैंने triggers आपको बताया, these are very easy ones, right? एक pen, is it easy one? Right? पेन को एक ट्रिगर बनाना. सामने हमारे पास एक बोर्ड है, स्टडी बोर्ड, उसके ऊपर कुछ एक छोटी सी पर्ची लगा देना. Isn't it an amazing trigger? What you have to do to explain anything, you have to simplify that first. And the moment you simplify, it sticks here forever. तो simplify जैसे ही आप चीजों को करोगे, दिमाग में वो stick हो जाएगी. So the best thing, that is the reason I said become a partner in your child's studies. Ask them, okay, what are you going to teach me today? Ask that. और कई बार ये भी पूछ लो सरप्राइजिंग, ओके आज क्या क्या पढ़ा, ये 10 चीज, इसमें से ये समझा मेरे को. वरना पता चला 10 चीज पढ़ी पर उसमें से एक ही याद करिए क्योंकि आज यही समझाएगा मैं. So yes, this is also where we have to play a little tricky, but ask them to explain it to you. You guys will be amazed how amazing explainer and tutors they are. The kind of explanations that they will give you, they will be amazing. ठीक है, कुछ दिमाग में सेट होगा, कुछ नहीं होगा, that's okay. It's again a very initial starting point. But it will be fun for sure. किसी ने सुना है टर्मिनोलॉजी पहले? ज़ाइग्रेनिक इफेक्ट? हमें से किसी ने भी? ओके. ज़ाइग्रेनिक इफेक्ट ये होता है, क्या होता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, हम सब लोग सॉन्ग सुनते हैं कहीं ना कहीं, राइट? कभी ऐसा हुआ है कि एक सॉन्ग दिमाग में अटक गया, पता चला सिर्फ 2 लाइन अटकी है, बट पूरे दिन वही 2 लाइन चलती रहती है रिपीट मोड में. कौन सा वाला सॉन्ग बताओ? कौन सा वो बताओ? यू हैव टू सिंग 2 लाइन्स. ओके, जब याद आ जाए तब यू आर सिंगिंग दैट, राइट? तो ये हुआ है हम सबके साथ कहीं ना कहीं कि वो 2 लाइन दिमाग में अटक गई और उसके आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि वो पसंद आ गया. ओके, और क्या रीजन हो सकता है? अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, वो एकदम सॉन्ग गाना है. हाँ, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, कई बार अटैच हो जाता है, मेंटली अटैच हो जाता है. ओके, व्हाट एल्स? आई विल गिव यू एन अमेजिंग रीजन. और क्या हो सकता है? ओके, वो सिचुएशन पे वो परफेक्ट फिट होता है, जिग्सॉ पजल कंप्लीट होता है. समबडी एल्स आल्सो सेड समथिंग, आई मिस दैट. सिंपल होता है. ओके, और कुछ? म्यूजिक की वजह से म्यूजिक जल्दी दिमाग में सेट होता है. और क्या यहाँ से कुछ कैची होता है? ओके, समथिंग दैट गेट्स इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड. और कुछ सिंपल रीजन बता दूं? क्योंकि वो हमने सिर्फ 2 लाइन सुनी है इसलिए. If you want to try this someday. अगर if you want to get rid of that, those 2 lines in your head, right? If you want to rid of that, listen that complete song. You will be done with that. Listen to that complete song and you will be done with that. फिर वो टेप बजनी कम हो जाएगी या तो बंद हो जाएगी. That's how it's going to be. That is called Zeigarnik effect. Anything which is incomplete in your life, you will always get hooked up to that.
वो चाहे रिलेशनशिप्स हो आपके, वो चाहे आपका स्टडीज हो, वो चाहे आपके एनीथिंग दैट यू टॉक अबाउट, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो. कई बार कोई दोस्त से बात करी ना, एकदम से अगर उसने फोन कर दिया, रख दिया ना, अरे सॉरी मैं बाद में करता हूँ, बाय. अरे यार ऐसे फोन रख दिया, थोड़ी देर के बाद यार फोन नहीं आया इसका अभी तक, यार फोन नहीं आया इसका अभी तक, व्हाई? इट्स इनकम्प्लीट. There's so many relationships also in our life, right? कई बार वो जब इनकम्प्लीट रह जाते हैं ना, वो हमेशा दिमाग में प्ले होते रहते हैं, चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो वो अलग बात है. वैसे ही स्टडीज में जो हम 25 और 5 की बात कर रहे थे, what you can do is you can have 2 chunks of 30 minutes, change the subject, again 2 chunks of 30 minutes, change the subject, again 2 chunks of 30 minutes. What you are doing end of the day is you are ruminating the same in the mind. So ruminating, honestly मुझे भी ये word पता नहीं था, मैंने परसों ही गूगल किया हुआ है, right? Because I wanted some refined word. So how does a cow eat the grass? Right? Takes the grass inside फिर पूरा दिन. So that is called rumination, right? अब मैंने बोला इसके लिए और तो क्या मैं word बताऊं, right? So I had to Google it for a while to search this word. That's called rumination. So what you are doing, जो आधा रह गया है ना, वो दिमाग में play होता रहता है बार बार. Because you are not completed the topic probably. You are not completed the subject. You are ticking on the time, right? 25 minutes हुआ. Let me take a quick 5 minutes breather. Again I will continue there and then I will change the subject. अब जो हो रहा है, you are actually just thinking about that subject in your brain. Just thinking about that subject in your mind. और कुछ नहीं हो रहा है. और जितना दिमाग में सोचोगे उतना आपका thought process और clarity would be amazing. So always change the topic, change the subject, and there is a nice terminology for that is S for Singapore, Q, 3, R, R for Rajasthan, S, Q, 3, R. So your first S is survey. First S is survey. What do we mean by survey? By survey we simply mean is if you are going to study chapter X, whatever chapter, madam, कोई भी एक chapter का नाम बताओ, which is whatever chapter you want to name. Photosynthesis. बाप रे इतना भारी subject. I resigned. Okay, so photosynthesis, right? How the plants work through the sunlight and sunlight gets converted into food and so on and so forth. So photosynthesis is one subject. What you have to do is you just have to survey that subject. Just flip the pages, survey that, find your own questions. So that is your second, which is questions. S, survey, Q, questions. Build your own questions that subject पढ़ने से पहले आपके questions बना लो. Right, 10 questions, bare minimum. चाहे 1 पेज का टॉपिक हो, चाहे 10 पेज का, bare minimum 10 questions. क्योंकि पहले के 3 क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस होंगे. Very simple, I can also do. What is photosynthesis? How does it work? What all things are required for that, or what all resources are required for that? Even if somebody doesn't know photosynthesis, ये 3 कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं, right? अब चाहे इसमें photosynthesis हो, चाहे war of Plassey हो, कहीं भी ये फिट हो सकता है पहले 2-4 क्वेश्चन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस. हैव दिस 10 क्वेश्चंस इन प्लेस. ये 10 क्वेश्चंस जो है इसके बाद व्हाट हैपेंस इज योर 3R. सो फर्स्ट क्या था? Q फॉर सॉरी S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन. उसके बाद द फर्स्ट वन इज नाउ यू रीड द टॉपिक. नाउ यू रीड द टॉपिक. So there are 2 points before your reading starts. First point is survey. Survey the topic. उसके basis पे questions बना लो आपके. Minimum कितने? 10. So now what you are doing is you are studying not as a student, as an audience. जब आप पढ़ाते हो तब आप क्या करते हो? जब मैं भी यहाँ पे पॉइंटर्स बनाता हूँ मैं ये सोचता हूँ क्योंकि इसके ऊपर है ना ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. या जब टॉपिक दिया जाता है कोई, उसके ऊपर हम सोचते हैं कि ये टॉपिक में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं.
So the same way, when you start studying and you start building your questions, your half job is done there. Because आपने टॉपिक पढ़ने से पहले आपके लिए उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, आपको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिलेगा दैट इज अ बोनस. So that is your reading. Next is recite. Recite again, rumination. What we have to do in survey? Survey, excellent. What we have to do in survey? So जब हम IELTS पढ़ाते हैं तो IELTS में we have reading as one of the 4 things, right? Reading, writing, listening, speaking. So reading में हम ये बोलते हैं there are different types of reading. One is skimming. One is skimming. So skimming means what? There's a subject, okay. कहीं पे कुछ बुलेट पॉइंट्स दिया हुआ है वो पढ़ लिया, कहीं पे कुछ इन्वर्टेड कॉमा में है वो पढ़ लिया, कहीं पे एक छोटा सा ब्लॉक में कुछ दिया है, कुछ इमेज रखी हुई है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर हार्डली गोइंग थ्रू 10% ऑफ द टॉपिक और द कंटेंट विच इज देयर इन दैट एंटायर चैप्टर ऑफ 10 पेजेस. वो 10% के बेसिस पे आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया कि ये चैप्टर कौन सी चीज का है. अब मुझे ये पता चल गया चैप्टर कौन सी चीज का है, उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा. सो वंस अगेन टू समराइज द आंसर विच आई गिव यू इज survey is your skimming reading, skim reading, right? So that is what it is. मतलब ऊपर से एक बार देखना. न्यूज़पेपर हम कैसे देखते हैं? बुलेट पॉइंट्स, राइट? वी जस्ट गो थ्रू द हेडलाइंस. जो पसंद आया उसमें भी पूरा नहीं पढ़ते, पहले उसमें जो छोटा सा ब्लॉक है ना वो पढ़ते हैं. इज इट देयर समथिंग विच विल इंटरेस्ट मी? यस. हाँ, अब जाके लास्ट की 2-4 लाइन पढ़ते हैं. हाँ ठीक है, अब जाके बीच की 2-4 लाइन पढ़ते हैं. हाँ, अब पूरा पढ़ेंगे. यार कितना फिल्टर लगा के बैठे हम लोग. I mean, I'm talking about myself also, not only about you guys. Right? We all do this. So this is how actually we do. So the best thing to do is first survey, which means skimming, then build your questions, at least 10. Next is read it. Reading के बाद क्या आता है वो 25, then by default you get to rumination stage, which is recite it. दिमाग में ना वो ऑटो प्ले होता जाता है कि हाँ ये भी पढ़ा था, ये भी था, ये था, ये चीज ऐसे थी, ओके लेट मी सी दैट अगेन, क्या था उसमें. सो दैट इज रिसाइटिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिव्यू. वॉट एवर यू हैव स्टडीड जस्ट रिव्यू दैट ओवरऑल. रिव्यू का बेस्ट तरीका आई विल टेल यू, समराइज. आपने 10 पेज पढ़े, राइट? 10 पेज को समराइज कर लो एक पेज में. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. हमें अभी लगेगा नहीं बहुत ईजी है. अरे इजी कुछ नहीं भाई. हम जब हाईलाइट करने को बोलते हैं, ऑनेस्टली आई हैव सीन द बुक्स, जहां पूरा पेज हाईलाइट किया हुआ है. भाई इतनी क्या जरूरत है? मतलब इंक पॉट लेके पूरा ही डाल देते. इतनी मेहनत क्यों करी? इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी. पूरा पेज हाईलाइट करना था, इंक पेज उल्टा कर देते. इंक पॉट क्योंकि हमने वो पहले वाले स्टेज नहीं किया, हमने सीधा रीडिंग से शुरू किया. जब हम सर्वे करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, तब मुझे समझ में आएगा कि अब इतनी सारी चीजें हैं, बट उसमें से ये चीजें है वो सबसे जरूरी है मुझे टॉपिक समझने के लिए, टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए. सो ये जब करोगे तब वो क्लैरिटी आ जाएगा. व्हाट यू आर सेइंग इज. थैंक्स फॉर मेंशनिंग दैट. व्हाट्स योर नेम? नंदिनी. थैंक्स नंदिनी. सो जब आगे के 2 स्टेज आएंगे ना, तब रीडिंग के बाद वो क्लैरिटी आ जाएगा. उसके बाद जो आप हाईलाइट करोगे दैट विल बी प्रीटी मच प्रिसाइज. Very precise highlighting after that it would be. So first one again quickly. What is the point? First survey, second question. फिर 3 hours. First hour reading, second hour recite, and last review. Awesome. This is best only when you practice it. बाकी तो ग्लोबल ज्ञान है, बाहर जाके बैग बाहर रखा निकल लिए, वो अलग बात है. But this is amazing. I also practice it a lot of times. I still keep studying all the time, and it works extremely amazing, guys. Review is the most important. 10 पेज पढ़े, उसको एक पेज में summarize करो. And that's task. I promise you that's the task. Please, ma'am. Please. When we do all these things, ma'am, those things keeps going in our mind the whole day. Yes, these are the things. Sometimes when we stuck at particular point, na, so we try to correlate the things. Right. This happened with me, and it helped me a lot. So I'm sharing this here. If somebody could help this. So while doing this at night before sleep, we get some link. Okay, this can be
Exactly. Like at some of the problems you are trying to solve from 3-4 days and you get stuck there, but at those points, if you don't give up and do na, you can solve this. Right? So never be lazy about doing this. Exactly. Thank you very much. Thank you. So मेरे पास तो सिर्फ खुद का एग्जाम्पल था. We got a live example here, and that is how Einstein also used to study. जब भी उसको कुछ problems होते थे, what they used to do is they used to give a marble or iron marble, right? He used to keep it in his hand. He would sit in a recliner chair and keeping hand like this, and he would keep thinking about the problem that he has in his mind, right? And after a while, what happens is the marble drops, makes a sound, he wakes up, and a lot of times he has come out with a solution. Exactly what you said, ma'am. Thank you. A lot of times he has come out with a solution, and that lot of time is actually most of the times. So that is how this actually works. So thank you once again. And this is, our sleep cycles are 90-minute sleep cycles. हम कई बार बोलते नहीं 8 घंटे सोना है. Actually, that is an odd time. That is not the standard time to sleep. Sleep in multiplication of 90. Sleep in multiplication of 90. It gives you, it wakes you up very fresh. जैसे आप उठते हो ना, like वो घंटी बज जाती है दिमाग की. You're very fresh. It's, I don't want to get into that REM moment, rapid eye moment and all those things, but in a very simple manner, it's a 90 minutes of a sleep cycle that we have. And अगर आप 90 minutes के बाद भी जाग जाते हो ना, still you are a little fresh at that time. So try that. And before Q&A, quickly, what all things we did today? क्या क्या करेंगे आज को जल्दी? First thing, setting the trigger. Trigger किसके लिए है? पहले तो बेडरूम में बैठना ही नहीं है. किचन में सोते नहीं है, किचन में डबल बेड नहीं लगाया हमने, नहीं लगाया ना. बाथरूम में जाके खाना नहीं खाते, वैसे ही बेडरूम में बैठ के पढ़ाई नहीं करते. और अगर बाय चांस है ऐसा सिचुएशन, तो दीवार के सामने बैठ के करो. एंड सेकंड, सेट अ ट्रिगर. व्हाट एल्स? Change the subject after 2 chunks of 30. 30 का कैसे हुआ? 25, 5. Then second chunk, 25, 5. Change the subject. और उतने में हमारा जो टॉपिक है कि आज का अगर एक चैप्टर कंप्लीट करना है वो नहीं है. और भी अच्छा है. If it is incomplete, it will stay in your mind. वो बाहर जा ही नहीं पाएगा. जब तक आप उसको वो 2 लाइन को कंप्लीट नहीं करोगे ना, वो 2 लाइन दिमाग में रिपीट मोड पे बजती रहेगी, बजती रहेगी, बजती रहेगी. इट इज द सेम थिंग. तो जब तक आप वो गाना तसल्ली से बैठ के 3-4 मिनट नहीं सुनोगे, तब तक वो बजता रहेगा. तो वैसे ही जब तक आपका वो चैप्टर खत्म नहीं होगा, तब तक आप यार इतना हो, इतना हो, इतना हो. उसके बाद फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, राइट? सनलाइट आया, प्लांट्स आया, उसको पानी मिला, बट सनलाइट फोटोसिंथेसिस कैसे बना, हाउ इज इट वर्किंग, नहीं समझ में आ रहा है. सो व्हाट विल हैपन इज, जैसे मैंने बताया, यू विल कीप थिंकिंग अबाउट इट, राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रुमिनेटिंग अबाउट इट. और दूसरे दिन जैसे ही आपने पढ़ा, वो परमानेंट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट ऑफ. इतना वो सॉलिड दिमाग में इंप्रेशन बना लेता है. और आप कभी भी देख लो, जहां पे आप कंफ्यूज होते हो ना, उसके बाद जो नॉलेज मिलता है वो हमेशा रहता है, राइट? अपने सर वो एमपी में क्या, महाराष्ट्र, राइट? महाराष्ट्र में ना, अरे महाराष्ट्र में खो गए थे ना आप. हाँ, गूगल ने गूगली दे दी थी, राइट? तो गूगल ने महाराष्ट्र में गूगली दी थी. अभी वो 4 रास्ते पे उनको कभी भी छोड़ दो, ही विल पिक द राइट वे. शायद वहां पे वो चाय की टपरी होगी, उसका कलर भी याद होगा. कुछ होता नहीं है कलर, बट फिर भी. Okay, so that's about it. What else? Please be partners, यार. बहुत हो गया bossism. Be partners. Start learning from them rather than, I mean, definitely we teach them, but start learning also from them. What else? Teach and learn. The best thing for all the students who are here, anybody who is studying, whether that's a parent or a student, doesn't matter. Anybody who is studying, study to teach, not to study. Because when you study to teach, you have to study it in the simplest possible manner. You have to create your own examples. You have to create your own examples.
And when you create your own examples, which means you will have to deep dive it, you will have to take resort from some different resources also, from where you can take knowledge, from where you can relate the topic. You will have to do that. You have no other option, because you are studying to teach, right? And that's the best thing. और कई बार I get kids in terms of counseling. Parents जनरली बोलते हैं ये सबके सामने बात नहीं कर पाता है, या शाय बहुत है, राइट? ये चीज करो and you look at his or her confidence. Friends, 1 month max. I promise you will see the change. सब जगह, I mean, just Google करो, नाम नंबर सब मिल जाएगा. I mean, no doubts about it. I'll share it at the end of the session. ना हो तो बता दीजिएगा. It's 100% guaranteed. I give it to my clients and they come after a month. They are like, sir, next session की जरूरत ही नहीं है. इसको बोलते खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, but ठीक है, that's okay. The kids are getting benefited. That's more important. What else? Choice. Hard work or smart work, it's completely your choice. अभी मेहनत करनी है और जिंदगी भर मजे करने हैं, अभी मजे करने हैं, जिंदगी भर मजदूरी मेहनत करनी है. It's completely your choice. Right? What else? Somebody was saying something. Mnemonics, right? जब भी facts की बात आती है, see, विबग्योर ही रहेगा. Planets का नाम आप बदल नहीं सकते हो, right? कि भाई मुझे है ना प्लूटो याद नहीं रहता, मैं इसको है ना कुछ और नाम दे दूंगा. मुझे जुपिटर याद नहीं देता, मैं इसको जस्सीप्रा बुलाऊंगा आपसे. नहीं बोल सकता है, उसको जुपिटर को जुपिटर ही बुलाना पड़ेगा. So in those cases, use mnemonics. And when you are studying the concepts, understand them, simplify them, make your own examples and teach them. You are sorted. What else? Anything that we are missing upon? Reinforcement over punishment. वो है ना poking. पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले. Please pray that गुब्बारा ना फूटे, but वो फूट गया ना, नहीं पढ़ना है, जाओ. अब क्या कर लोगे बेटा वो बताओ. बट इट डज नॉट मीन कि हमें ऐसा करना चाहिए गाइस. ओके, अगर ये पोकिंग होता भी है ना जाने अनजाने में, तो हमारे लिए होता है. इट इज डेफिनेटली फॉर अस जस्ट विथ ओनली वन सेल्फिश रीजन कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ ले, और कुछ नहीं होता है उनका. आपके अच्छे ग्रेड आने से पापा के बिजनेस में 10% का मुनाफा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला ये, राइट? पापा को सैलरी हाइक मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा. It's just one happiness and peace of mind that yes, my son or daughter is studying well. Period. That's it. So if this poking happens, प्यार से रिमाइंड करवा लो, मम्मा चलो मैं कुछ सिखाता हूँ, आ जाओ. पापा चलो सिखाता हूँ, आ जाओ. You also become partner. Let them also become partner. Partnership is mutual. It is not one-sided. Partnership सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से भी होती है, right? Both the partners are equally responsible. Both the partners are equally responsible. Be good partners. Okay, last जो हमने किया था, SQ3R, S, survey, question, read, recite and review. So your first one was survey scheming, then your question, build questions based on that, at least 10 questions. Start reading the topic, then start reciting, keep playing it in your head, and the last but not the least is review it, which means put a quick summary. और सीरियसली बोल रहा हूँ, इनिशियली वो समरी ना बहुत डिफिकल्ट लगेगा. हाँ, अगर 10 पेज के ऊपर 5 पेज लिखने को बोल दूंगा इजी है. 10 पेज पे 1 पेज लिखना डिफिकल्ट है. 1 पेज का अगर समरी बनाना है, 4 लाइन का समरी बनाओ, फिर देखो बेटा. और वो 4 लाइन में सब कुछ आ जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि पहली 4 लाइन लिख ली मैंने, या तो ऊपर की बीच वाली और लास्ट वाली 4 लाइन लिख ली, खत्म. नो, नॉट दैट. इट हैज टू समराइज द एंटायर पेज. So 4 lines each page, 10 page, 40 lines approximately, 1.5 page. That's how it should get sorted. Right? So that's it from my side. We'll move to the question answer. Any good questions from anyone? Please shoot. Okay, great. So that's it, and that's me, and this is me. It's
indeed a pleasure to have you all here. And yeah, you could write here, Google it. That's my clinic's number for the appointments. But yeah, otherwise, that's it. So we conclude? Okay, sure. See, again, I'll be a little happy. कुछ खुशामद होने वाली है, right, ma'am? It was indeed a pleasure to have you over, and we look forward to the next session. I was actually just wondering कि जब हम पढ़ रहे थे तब आप कहाँ थे? अरे मुझे तो ये लगता है मैं पढ़ रहा था तब मैं कहाँ था, मुझे तो अभी भी ये होता है. तो that is one thing, and I hope and I actually feel शायद इनका जादू actually चल गया. वो magician है, काफ़ी कुछ the children have been sitting quite patiently, so that I think is the best result you can see. So thank you everyone, and we look forward to have you again at AMA. Thank you, ma'am. Thank you very much.